Prayagraj with the holy city of Varanasi, and he spoke about how it is going to help all sections of society, not just people who commute on a daily basis, farmers who have to take their produce to different cities, covered yatris who have to travel on these routes. So connectivity a priority for Prime Minister. There, Prime Minister's crews parking near Ravidas Park, and that is Ravidas Ghat as well, and Prime Minister would be paying his respects to Guru Sant Ravidas, 14th century Sant Ravidas, who is known for his sermons of equality. He is also known for his contribution, the way he led the Bhakti movement in the country. And there, the beautifully lit Varanasi bears testimony to the spirit of Varanasi, Prime Minister, in his address. So you can see Prime Minister's cruise ship is parked on Sant Ravidas Ghat. In the background, you can see millions of diyas lighting the ghat, the other side of River Ganga, the ghat of Varanasi. Prime Minister in his address spoke about it may be a time of gloom because of the pandemic, time of precautions, but that hasn't diminished in any manner the spirit, the spirituality, the spiritual strength of Varanasi, and that, he says, is the true identity of the holy city of Varanasi. And that spirit through the diyas is also complemented through this state-of-the-art sound and light show that concluded a short while ago, and we can also see these beautiful lights still on, adding fresh hues and color to the holy city of Varanasi. Prime Minister's next program would be paying his respects to the idol of Sant Ravidas. जी, आपने अभी जो कहा, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इसी का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि कोरोना काल में काफ़ी कुछ बदल गया है, लेकिन काशी की ऊर्जा, काशी की भक्ति और शक्ति, इसे कोई बदल नहीं सकता। तो काशी में अपने आप में एक अलग तरह की ऊर्जा है, एक अलग तरह की भक्ति का भी भाव है, शक्ति का भी भाव है। और काशी की धरती पर जब आप पहुँचते हैं तो आपको एक अलग ही तरह का अल्हड़पन भी होता है, साथ में उत्साह भी होता है, ऊर्जा भी होती है, भक्ति का भाव भी होता है और आध्यात्मिकता भी आपको सराबोर कर देती है। ये काशी की जो मिट्टी है, काशी की जो धरती है, उसका ये बहुत ही एक निराला रंग है, अनोखा रंग है। ये वास्तव में काशी है। और ये कहते हैं कि विश्व की सबसे पुरानी जो है, विश्व की सबसे पुरानी जीवित नगरी अगर कोई है तो वो काशी है। बहुत सारी पुरानी नगरियां हैं, लेकिन जो अगर जीवित नगरी काशी कहेंगे, विश्व की सबसे पुरानी अगर कोई जीवित नगरी है तो दरअसल उसे काशी माना गया है। इसीलिए न सिर्फ भारत भर से बल्कि विश्व भर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं काशी का आनंद लेने, काशी की धरती को देखने के लिए, और यहाँ पर जो आध्यात्मिकता के रंग बिखरे हुए हैं उसका आनंद लेने के लिए। Absolutely, it's a beautiful moonlit night, Kartik Purnima. The night is, and the moonlight is complemented beautifully by the lamps, the earthen lamps that light the ghats of Varanasi. And Ashok, earthen lamps also remind us of the vision of vocal for local. Prime Minister Narendra Modi, in his address in the celebration that marks Dev Deepavali, spoke about the need to remember the spirit of vocal for local, whether it's Diwali, whether it's Dev Deepavali. He hailed the people of Kashi, the people of the nation, to not forget that while we resurrect the nation's economy, the nation's strength, on this holy occasion, Prime Minister also remembered the bravery of the Jawans. These celebrations, whether religious or in other forms, these celebrations become possible, these gatherings become possible because our Jawans guard our borders, make us feel safe, protect the nation at all times. So he said, when you light the diyas, also remember and light diyas for the bravery of Jawans as well. Today also happens to be Guru Purab, Guru Nanak Dev's जी, और ये जो आप देख रहे हैं, ये चेत सिंह घाट है, जहां पर अभी लाइट एंड शो हुआ। इस वक्त जो आपने देखा, लाइट एंड साउंड शो हुआ। और इस चेत सिंह घाट के बारे में कहते हैं कि इसका जो निर्माण है वो पंचकोट के राजा ने किया था। कुल मिलाकर 84 घाट हैं वाराणसी में, अलग अलग तरह के, और लगभग 4 मील लंबे तट पर ये घाट बने। और इस वक्त देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस क्रूज से बाहर आते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ हैं, और आगे के कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री का जो आज का रविदास पार्क की तरफ प्रधानमंत्री इस वक्त बढ़ रहे हैं,
और इसके बाद सीधा सारनाथ जाएंगे, एक बार फिर से लोगों का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उन्होंने काशी के लोगों को विशेषकर आज कई बार उन्होंने नमन किया, प्रणाम किया, काशी के लोगों का विशेष आभार जताया और मां अन्नपूर्णा देवी की उस प्रतिमा की भी बात की जो लगभग 100 साल बाद भारत वापस आ रही है, क्योंकि यहाँ से वो चुरा ली गई थी काशी। और काशी के बारे में कहते हैं कि काशी पर मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। काशी के लिए मां अन्नपूर्णा का बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि काशी के लिए कहा जाता है कि वहां पर कभी कोई भूखा नहीं रहता, क्योंकि वहां पर मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन मां अन्नपूर्णा की एक बहुत ही प्राचीन, ये देखिए संत रविदास की जो मूर्ति है, उनकी प्रतिमा है, जिस पर प्रधानमंत्री आएंगे, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और ये सामाजिक समरसता का एक विशेष जो है, प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम में इस बात का ध्यान रखते हैं कि सामाजिक समरसता का एक विशेष संदेश जाए। और आज जबकि गुरु पर्व भी है, गुरु नानक देव जयंती भी है, उन्होंने काशी के लोगों का जब अभिवादन किया तो उन्होंने न सिर्फ काशी के कोतवाल का जिक्र किया, बल्कि मां अन्नपूर्णा देवी का जिक्र किया, मां गंगा का, और साथ साथ गुरु नानक जयंती है तो प्रधानमंत्री ने बोला जो बोले सो निहाल, और साथ साथ नमो बुद्धाय उन्होंने ये भी करा। तो एक तरह से धार्मिक और सामाजिक समरसता किस तरह से बनी रहे, कैसे सबका साथ सबका विकास का भाव है वो जो है वो बना रहे, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री हमेशा सजग रहते हैं। और इसीलिए अब वो संत रविदास की प्रतिमा पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने गए हैं। And beautifully lit lamps welcome Prime Minister Narendra Modi here as well at Sant Ravidas Ghat. And we also see the idol, the statue of the venerated poet saint Sant Ravidas. Ashokji, what is special is also that you mentioned Guru Purab, and Ravidas ji is known as poet saint. His devotional songs are the ways through his followers follow him, and Guru Granth Sahib also has references to songs by Sant Ravidas. Bilkul. So on the occasion of Guru Purnima and Guru Purab, Prime Minister Narendra Modi there taking on the steps of Ravidas Ghat and moving towards the idol of much venerated Sant Ravidas. You can see it in the visuals. ये जो आप घाट देख रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं काशी बचपन से जाता रहा हूँ। मेरे जो मूल जो निवास, मतलब मेरा जो कह सकते हैं कि जो मूल है वो काशी में है, और मैं बचपन से देखता रहा था ये सब घाट। वास्तव में ये जो आपको आज जो घाट दिख रहे हैं इतने खूबसूरत, ये बिल्कुल ऐसा नहीं था। घाटों की स्थिति ऐसी थी कि वहाँ पर लोग जाते नहीं थे। हम लोग जब दिल्ली से जाते थे, वाराणसी जाते थे, तो गंगा के दर्शन करने की अभिलाषा जरूर सबके मन में रहती थी, लेकिन घाटों पर जो स्थिति थी, घाटों पर जो गंदगी थी, उसको देखकर बहुत कम लोग हिम्मत करते थे, जाते भी थे और किसी तरह से चक्कर लगाकर एक बार आ जाते थे, माँ गंगा का आचमन करके आ जाते थे। लेकिन आज जो ये घाट आप देख रहे हैं, ये इतने खूबसूरत बन चुके हैं और इतना अद्भुत नज़ारा है कि आज आप जाएं तो वहाँ पर घंटों घंटों बैठ सकते हैं। और अगर आप आज काशी जाएंगे, आज बनारस जाएंगे, वाराणसी जाएंगे, तो आप एक बार नहीं, आपका मन करेगा कि आप रोज रोज जाएं, बार बार जाएं गंगा तट पर। इतने खूबसूरत घाट और माँ गंगा के गोद में बैठकर आप वहां पर जो अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है, वो आनंद आप ले सकते हैं। There, you're right, Ashok. And for Swachh Bharat Abhiyan, Varanasi was an important center. Several times when Prime Minister would visit his parliamentary constituency, he would urge on the people of the city to change the destiny of Varanasi. The success of Swachh Bharat Abhiyan is really presented through the success in which Varanasi turned around, the way it looked, the way it really conquered the imagination with the beauty, with the cleanliness that we see today. Whether it is the Ghats, whether we see it's Ravidas Park where Prime Minister Narendra Modi is moving towards the statue of venerated Saint Ravidas. The people had an important आपने जो स्वच्छता की बात करी ना, मैं ये आपको बताऊं कि ये लोगों को कहा जाता है, बनारस के लोगों के लिए कहा जाता है वो बड़े अल्हड़ होते हैं, मदमस्त होते हैं, किसी की बात सुनते नहीं। और आप जानते हैं बनारस का पान भी बहुत मशहूर है, दुनिया भर में लोग बनारस का पान खाने आते हैं। और बनारसियों की एक आदत मानी जाती थी कि वो पान खाते हैं,
कहीं भी थूक देते थे। तो ये जब लोग, प्रधानमंत्री ने जब वहां स्वच्छता की बात की तो कई लोगों को लगता था कि बनारसियों को बदलना, बनारसियों को ये कहना कि भाई वो पान खा के इधर उधर ना थूकें, ऐसा बनारस के लोगों से पालन करवाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपको याद होगा प्रधानमंत्री खुद घाट पे पहुंचे थे और उन्होंने पहला फावड़ा खुद उठाया था और फावड़े से उठाकर उन्होंने मिट्टी साफ करनी शुरू की थी और साथ साथ प्रधानमंत्री ने लोगों से निवेदन किया था कि अपनी आदतें बदलें। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट बात थी, लोग अपनी आदतें बदलें। ऐसा कह देना बड़ा आसान है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब खुद बढ़कर नेतृत्व किया तो लोगों ने, आप देखिए, लोगों की आदतें बदलने लगी हैं और अब वाराणसी में भी ये चीज बदली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हैं। कोरोना काल है तो प्रधानमंत्री अपने हाथ स्वच्छ करते हुए, साफ करते हुए प्रधानमंत्री। आपने आदत की बात करी है हाँ, अशोक, ये भी एक बहुत जरूरी आदत आदतें हैं आज के समय की। हैंड सैनिटाइज करना हो बिल्कुल, या मास्क पहनना हो। आज दो एड्रेसेस थे प्राइम मिनिस्टर के, लेकिन जब उनका एड्रेस समाप्त हुआ तो वो दोबारा अपना मास्क पहने। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन किए हुए हैं, जो पीछे सिक्योरिटी है, साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं, सभी मास्क पहने हुए हैं। तो ये भी एक संदेश जाता है बिल्कुल कि जो लीडर्स हैं। और आपने जो घाट पर लोगों की भीड़ देखी ना, वो बहुत जाहिर सी बात है कोरोना के कारण बहुत सीमित संख्या में लोग थे जी। नहीं तो ये देखिए आप देख संत रहे रविदास हैं संत रविदास की स्मृति पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14th-15th century poet Saint Sant Ravidas, Prime Minister Narendra Modi paying his respects, floral tributes. He is the leader who's Sant Ravidas known for uniting the society, the divisions that existed during his time and much later as well, devotional songs that talk about unity of people, unity of human spirits. Prime Minister Narendra Modi paying his respects at Sant Ravidas Ghat, at the altar, at the statue of Sant Ravidas in Varanasi. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सामाजिक समरसता का एक बड़ा संदेश भी संत रविदास जी के साथ जुड़ा हुआ है। और जैसा कि अभी बात हुई कि संत रविदास और साथ साथ गुरु नानक देव भी संत रविदास की जो उनके अनमोल वचन है वो उनके आपको गुरु वाणी में भी ऐसा आपको लगेगा। और यहाँ पर भी इसके भी सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। वहाँ पर इसके लिए भी विशेष रूप से एक बड़ा फंड जो है अलॉट किया गया है ताकि संत रविदास की जो धरोहर है उसको खूबसूरती से संजोया जा सके। And there Prime Minister Narendra Modi at the idol of Sant Ravidas. And in the background you can see beautifully decorated Sant Ravidas Park that is just next to Sant Ravidas Ghat, and Prime Minister paying his respect to the poet saint Sant Ravidas. A lot is known about Sant Ravidas, Ashok ji, through myths, through stories that pass on from generation to generation. It is said he rose from a very difficult background, from a poor family, but he rose through his spiritual strength. Instead of making his difficult background his weakness, he made it into a strength. His songs, his poetry, and Prime Minister Narendra Modi there bowing to poet Saint Ravidas. और संत रविदास हमेशा कहते थे व्यक्ति को उसके गुणों के आधार पर उसको सम्मान मिलना चाहिए, इसलिए नहीं कि वो किस जाति में पैदा हुआ है, किस कुल में, किस परिवार में पैदा हुआ है। और इसीलिए संत रविदास ने कहा था, ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चांडाल के जो होए गुण प्रवीण। यानी जिसमें गुण हो आप उसको पूजिए। अगर कोई ब्राह्मण भी है लेकिन गुणहीन है तो उससे कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर कोई चांडाल भी है लेकिन उसके गुण हैं तो आप उसको पूजिए। वो हमेशा कहते थे कि जो गुण हैं व्यक्ति के अंदर जो सद्गुण हैं वो आधार होने चाहिए किसी को भी पूजने का। और देखिए प्रधानमंत्री ने अभी यहाँ पर अपने संबोधन में एक बहुत विशेष बात कही थी। उन्होंने कहा, विरासत की जब बात की तब उन्होंने एक इशारा किया था कि विरासत जो है वो देश की धरोहर होती है, वो विरासत होनी चाहिए। और इसके अलावा आपकी भारत की जो संस्कृति है, आस्था है, मूल्य हैं, वो विरासत होने चाहिए। लेकिन
उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के लिए उनका परिवार, उनके परिवार की प्रतिमाएं, उनके परिवार की जो तस्वीरें हैं वो विरासत होती हैं। तो यहाँ पर भी देखिए कि गुरु रविदास ने भी लगभग ऐसा ही संदेश दिया था कि गुण या कुल या जाति या परिवार जो है इंपॉर्टेंट नहीं होता जहां पैदा होते हैं, बल्कि आपके अंदर गुण क्या हैं, सद्गुण क्या हैं, वो आधार होने चाहिए। आप किसको पूजते हैं, किसको आप अहम मानते हैं। Absolutely, Ashok. Unity of the human spirit was the message of Sant Ravidas, and Prime Minister Narendra Modi there, after having paid respects on the idol, on the statue of Sant Ravidas, the much beloved 15th, 14th, 15th century, that's when it is said to be the origin of Sant Ravidas. He spoke about the removal of social divisions on the basis of gender, on the basis of wealth. He promoted unity in pursuit of personal, spiritual freedoms. And that today also characterizes the spirit of Varanasi, that is home to so many cultures, so many communities, the spirit of India for that matter, unity in diversity that really symbolizes the spirit of our country.